Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you will be fine. This is lecture 28 of our signal and system course, in which we will talk about Laplace transform and region of convergence. Region of convergence is an important concept with respect to Laplace transform. We have discussed in the previous lecture that Laplace transform is a more generalized type of transform as compared to Fourier transform. Fourier transform only exists for a few class of signals. However, Laplace transform is more generalized, and especially for those type of impulse responses which corresponds to unstable system. Their Fourier transform does not exist, but we can find their Laplace transform. However, it is important to realize that Laplace transform does not converge in all regions. There are a few regions in which the Laplace transform of a signal will converge, and there are few regions in which the Laplace transform will not converge. So ROC, or region of convergence, is an area which is associated with the Laplace transform, with the algebraic expression of the Laplace transform, in which the Laplace transform of any particular signal exists. So today we will discuss in detail about this ROC, or region of convergence, and we will see many type of signals and their associated region of convergences for them. So let's start today's lecture, which is about the relationship between the algebraic expression of Laplace transform and the region of convergence. So let's first define that what is a region of convergence. So region of convergence is an area where the Laplace transform converges. So it is basically set of values of S. Please remember that लास्ट टाइम में हमने ये बात की थी कि Laplace transform के केस में ये जो वेरिएबल S है, this is a complex variable which has a non-zero real part and a non-zero imaginary part. If real part becomes equals to 0, then it becomes the Fourier transform, because in that case S will simply be equals to j omega, and then the Laplace transform and Fourier transform are one and the same thing. However, generally when S has a non-zero real part and a non-zero imaginary part, so then we say that S lies in the complex plane. So for those values of S, the integral of Laplace transform will converge in some regions, and those regions are called the region of convergences, where the Laplace transform of any particular signal or that integral converges. तो वो एरिया जो है, वो रीजन जो है जिसमें ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है. जो लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल्स ली थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, उसमें आपको याद होगा कि हमने कहीं कहा था कि रियल ऑफ एस ग्रेटर देन ए इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और रियल ऑफ एस लेस देन ए जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है. सो बेसिकली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी रीजन है जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है, या ये इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज करता है, जो इंटीग्रल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है. सो प्लीज़ रिमेंबर कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हर जगह पे कन्वर्ज नहीं करेगा. कुछ एरिया होगा, कुछ रीजन होगा जहाँ पे ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, और कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ये इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज नहीं करेगा. सो वो एरिया या रीजन जहाँ पे ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इंटीग्रल है that converges, that area is called region of convergence. और आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ सिग्नल्स के लिए देखेंगे कि सिग्नल की टाइप के साथ इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या लिंक है, हाउ दिस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल. जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, और वो कितनी टाइप्स के जनरली होते हैं वो भी अब आज हम बात करेंगे. लेकिन उनके साथ उन सिग्नल्स के साथ जो उनका एसोसिएटेड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा
वो भी किसी खास अंदाज का होगा। यानी अगर एक टाइप का सिग्नल है तो उसके साथ जो आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एसोसिएट कर सकते हैं वो किसी स्पेशल टाइप का होगा। अगर उस सिग्नल की टाइप चेंज हो जाती है, वो किसी और टाइप का सिग्नल बन जाता है, तो फिर आप उसके साथ जो ROC एसोसिएट कर सकते हैं या करेंगे, वो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। सो ये बेसिकली सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि सिग्नल्स जो हैं वो, या इम्पल्स रिस्पांस फॉर एग्जांपल आप कह लें, क्योंकि इम्पल्स रिस्पांस इज आल्सो अ सिग्नल व्हिच करेस्पॉन्ड्स टू अ सिस्टम। तो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कि हम इम्पल्स रिस्पांस को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। सो उस इम्पल्स रिस्पांस जो है वो किस टाइप का है, सिग्नल है, क्या वो राइट साइडेड है, क्या वो लेफ्ट साइडेड है, क्या वो जो है टू साइडेड है, मुख्तलिफ टाइप का वो हो सकता है। सो आज हम इस तरह के सिग्नल्स को भी इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि राइट साइडेड सिग्नल क्या होता है, लेफ्ट साइडेड क्या होता है और टू साइडेड क्या होता है। बट वट एवर टाइप ऑफ द सिग्नल इज, आज हम देखेंगे कि उस टाइप के साथ उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपके पास टाइप चेंज होगी, यानी राइट साइड के साथ जो आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एसोसिएट करते हैं वो डिफरेंट टाइप का होगा, लेफ्ट साइड के साथ जो आप एसोसिएट करते हैं वो किसी डिफरेंट टाइप का होगा, और टू साइडेड सिग्नल के साथ आप जिस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एसोसिएट करते हैं वो किसी डिफरेंट टाइप का होगा। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है बेसिकली एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, और इसका मतलब ये है कि इस एरिया में, यानी जिसको हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इनफिनाइट नहीं होगा। क्योंकि एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि हर पॉइंट पे जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म उस एरिया में जो ROC है या जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हर पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करेगा, या कहीं पे भी उसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो एक ऐसा एरिया है कि उस एरिया के अंदर कहीं पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर इन्फिनिटी नहीं होता। क्योंकि अगर कहीं पे इन्फिनिटी हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उस जगह पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो एरिया है जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर जो है वो इन्फिनिटी नहीं होगा। Okay, so now let's define a few concepts which we will need uh, to discuss this region of convergence and these things. तो सबसे पहला जो concept है वो होता है zeros. Zeros of the system and poles of the system. ये दो चीज़ें हैं, दो concepts हैं जो हम पहले discuss करेंगे, और फिर इसी के हवाले से हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे। सो फॉर डेफिनेशन ये है जीरोस की, फॉर अ रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म द रूट्स ऑफ द नोमिनेटर पोलिनोमियल आर commonly referred as the zeros of x of s, since for those values of s x of s is equals to 0. सो जीरोस, आप अगर आपके पास रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, सो सबसे पहले ये समझ लें कि रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है। रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि जो आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है x ऑफ s का, दैट इज सम नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, मसलन s माइनस 1 divided by say s plus 1. So now this is a rational Laplace transform because it has a non-zero numerator, it has a non-zero denominator. अगर आप नोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो उसके जो भी रूट्स आपके पास आएंगे तो वो उस सिस्टम के ज़ीरोज़ कहलाते हैं। और वो ज़ीरोज़ इस वजह से कहलाते हैं कि अगर आप s की वो वाली वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास x ऑफ s 0 आ जाएगा। मसलन जैसे कि मैंने कहा x ऑफ s इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू s माइनस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, तो अगर मैं s माइनस 1 नोमिनेटर है इसको इक्वल्स टू 0 पुट करूँ तो इसका मतलब है एट s is equals to 1 because s minus 1 is equals to 0 means s is equals to 1. So at s is equals to 1 I have the 0 of the system. So अगर मैं अब आप s को 1 पुट कर दूं अपने इस x ऑफ s वाले एक्सप्रेशन में which was s minus 1 divided by s plus 1, तो चूंकि s 1 है तो ऊपर मेरे पास 0 आ जाएगा और नीचे मेरे पास जो है वो
2 आ जाएगा. सो 0/2 is 0. So it means कि x of s at s is equals to 1 is 0. So that's why it is called the zero of the system. So ये इस वजह से इसको जो roots of the numerator polynomial हैं they are called the zeros of the system, because ये अगर आप उस रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इनकी जितने वैल्यूज पुट कर देंगे तो वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा. इस वजह से इनको सिस्टम के ज़ीरो कहा जाता है. इसी तरह से जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स हैं वो कहलाते हैं पोल्स ऑफ द सिस्टम. और इसको पोल्स इस वजह से कहते हैं कि अगर आप ये डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं उनको इस एक्स ऑफ एस में पुट कर देंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा. मसलन जैसे कि मैंने कहा, अगर एक्स ऑफ एस आपके पास s-1 डिवाइडेड बाय s+1 है, तो अगर आप s+1 जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल्स टू 0 पुट करें तो इस मीन एट s इज इक्वल्स टू -1 यू हैव अ पोल ऑफ द सिस्टम. अब मैं अगर s को -1 पुट करूं अपने x ऑफ s में विच इज s-1 डिवाइडेड बाय s+1, तो ऊपर मेरे पास -2 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा. सो दैट विल गिव मी इन्फिनिटी. सो इट मीन्स एट s इज इक्वल्स टू -1 आई हैव अ पोल ऑफ द सिस्टम. सो जीरोज जो है वो s की ऐसी वैल्यूज हैं कि अगर आप वो अपने x ऑफ s में पुट करेंगे तो x ऑफ s की वैल्यू 0 आ जाएगी. इस वजह से उनको सिस्टम के ज़ीरो कहा जाता है. और इसी तरह से पोल s की ऐसी वैल्यूज हैं कि अगर आप उनको पुट करेंगे x ऑफ s में तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो पोल ज़ीरो आप फाइंड कर सकते हैं रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, तो इनको हम प्लॉट भी कर सकते हैं. तो ये हम नेक्स्ट 1-2 स्लाइड्स में आपको ये शो करेंगे कि किस तरह से पोल ज़ीरो प्लॉट जो है वो किया जाता है. लेकिन अगर जो भी आपने पोल और ज़ीरो फाइंड किए हैं अगर आप उनको एस प्लेन के अंदर प्लॉट कर दें तो दैट इज़ नोन एज अ पोल ज़ीरो प्लॉट. एक और बात वो ये है कि ऑर्डर ऑफ अ पोल आर ज़ीरो. सो ऑर्डर ऑफ अ पोल आर ज़ीरो का मतलब ये है कि इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पोल आर ज़ीरो इज़ रिपीटेड एट अ गिवन लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 2 zeros एट s इज इक्वल्स टू 1, एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा ज़ीरो भी हो सकते हैं. इसी तरह से एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा पोल भी हो सकते हैं. सो अगर आपके पास s इज इक्वल्स टू 1 पे 2 ज़ीरो हैं तो हम ये कहेंगे कि वी हैव अ सेकेंड ऑर्डर ज़ीरो एट s इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अब एक नहीं 2 ज़ीरो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं तो वी विल से कि वी हैव अ सेकेंड ऑर्डर ज़ीरो एट s इज इक्वल्स टू 1. इसी तरह से अगर s इज इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास 2 पोल्स हों तो वी विल से कि वी हैव अ सेकेंड ऑर्डर पोल एट s इज इक्वल्स टू 1. एक और चीज़ याद रखिएगा, ये आज के लेक्चर में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे और इसको यूटिलाइज भी करेंगे इस फैक्ट को. लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा इक्वल होते हैं. सो अगर किसी सिस्टम में 3 ज़ीरोज़ होंगे तो उसमें 3 ही पोल होंगे. अगर किसी सिस्टम में 5 पोल होंगे तो उसमें 5 ही ज़ीरो होंगे. सो किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड नंबर ऑफ पोल्स आर ऑलवेज इक्वल. और इसी तरह से ये जो किसी सिस्टम में जितने पोल्स और ज़ीरोज़ होते हैं उसके साथ सिस्टम का ऑर्डर भी डिफाइन किया जाता है. मसलन अगर किसी सिस्टम में एक पोल और एक ज़ीरो है तो उसको नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहा जाता है. अगर 2 पोल 2 ज़ीरो होंगे तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम, 3 पोल 3 ज़ीरो होंगे थर्ड ऑर्डर सिस्टम एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़ डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक पोल है एक ज़ीरो है, क्योंकि हमेशा पोल ज़ीरो बराबर होते हैं. सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये हुआ 2 पोल्स एंड 2 ज़ीरोज़. थर्ड ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये हुआ 3 पोल्स 3 ज़ीरोज़ एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके, सो ये एग्जांपल है जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हमारे पास लेट्स सपोज x ऑफ s है s-1 डिवाइडेड बाय s+2. सो नाउ दिस x ऑफ s इज रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी इट इज सम नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है. बाज़ औक़ात हम देखेंगे, आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में किसी लेक्चर में हम देखेंगे कि बाज़ औक़ात आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है इस x ऑफ s का वो 1 होता है. ठीक है. सो वो भी केस हो सकता है, बट इन दैट केस वी डोंट से कि इट इज रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म मीन्स सम
non-zero numerator over some non-zero denominator, yani s minus 1 divided by s plus 2. So this is a rational Laplace transform. So it has a numerator polynomial, it has a denominator polynomial. If I put numerator polynomial equals to 0, I will get the zeros of this system, and if I put denominator polynomial equals to 0, I will get poles of this system. So अगर मैं नोमिनेटर को 0 पुट करूंगा तो I will have a 0 at s is equals to 1. सिमिलरली अगर मैं डिनोमिनेटर को जो है वो इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो I will have a pole at s is equals to -2. और यहाँ से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसको अगर हम s इज इक्वल, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास s इज इक्वल्स टू 1 पे सिस्टम का एक 0 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में, इस रिलेशनशिप में s की जगह पे 1 पुट कर दूं तो आई विल गेट x ऑफ 1 इज 1 minus 1, बिकॉज s की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ. सो 1 minus 1 इज 0 over 1 plus 2 which is 3. सो 0 over 3 means 0. सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने इस रिलेशनशिप में s को 1 पुट करता हूं तो इसका आंसर 0 आता है. इस वजह से ये सिस्टम का 0 कहलाता है. इसी तरह से अगर मैं s को -2 पुट कर दूं इस रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में तो आई विल गेट x ऑफ 2 विच इज 2 minus 1 1 sorry -2 -1 -3 and -2 plus 2 which is 0. so -3 over 0. so किस 0 से आप किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट इन्फिनिटी. सो इट मीन्स कि आई हैव अ पोल एट s इज इक्वल्स टू -2. सिमिलरली ये अगर आपके पास, ये तो जो आपके पास था दिस वाज अ सिंगल ऑर्डर सिस्टम, इसमें आपके पास एक पोल था और एक ही 0 था. नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि s-1 इंटू s-1, ठीक है. सो ये आपके पास नोमिनेटर है चूंकि, तो उसको आप दोनों को मतलब s-1 इंटू s-1 को इक्वल्स टू 0 पुट करें तो इट मीन्स इस जगह से भी आपके पास s इज इक्वल्स टू 1 आएगा, इस जगह से भी आपके पास s इज इक्वल्स टू 1 आएगा. सो यू हैव 2 zeros एट पॉइंट 1. ये वाला 1 पॉइंट है जिसपे ये 2 zeros शो किए गए हैं, और अगर आप देखें तो ये 2 zeros ड्रा किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि इट हैज डबल 0 एट s इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. और जो डिनोमिनेटर है आप इसको इक्वल्स टू 0 पुट करें तो यू विल गेट पोल एट s इज इक्वल्स टू -1, ये वाला पॉइंट, एंड एट s इज इक्वल्स टू 2, ये वाला पॉइंट. सो इस सिस्टम के अंदर 2 zeros हैं और 2 पोल्स हैं. ठीक है. और इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये 2 से आगे जितना भी एरिया है अप टिल इन्फिनिटी, ये शेडेड एरिया जो नज़र आ रहा है आपको, ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है. ठीक है. ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि किसी सिग्नल की जो जिस टाइप का सिग्नल होता है उस टाइप के हवाले से हम उसके साथ कौन सा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं. लेकिन ये इस स्लाइड से जो बात आपने याद रखनी है, खैर प्रॉपर्टीज़ तो हम अभी डिस्कस करेंगे आरओसी की, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो इसका मतलब ये होगा कि इट विल हैव सम जीरोस एंड सम पोल्स इन दिस एस प्लेन. तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किसी भी पोल से स्टार्ट होगा, किसी पोल से स्टार्ट होगा और ये अप टिल प्लस इन्फिनिटी होगा, या ये भी हो सकता था, अगरचे इस केस में नहीं हुआ लेकिन हो सकता था, वो भी हम थोड़ी देर में जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी हो सकता था कि ये इस पोल से स्टार्ट होता जो -1 वाला पोल है और ये माइनस इन्फिनिटी तक होता रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी. तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस पोल से इस पोल के दरमियान होता, बिटवीन -1 एंड +2. एक चीज़ याद रखिएगा इस स्लाइड में, या वैसे जो इससे भी हमें आपको आइडिया हो जाएगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कभी पोल लाई नहीं कर सकता. इसकी वजह क्या है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो एरिया है जहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी ना हो. इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि इस सारे रीजन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि इस सारे रीजन में किसी भी पॉइंट पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन्फिनिटी नहीं होता. और पोल एक ऐसा पॉइंट है, बाय डेफिनेशन पोल की डेफिनेशन ये है कि
पोल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लैपलास ट्रांसफॉर्म का आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। सो ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऐसा रीजन है या ऐसा एरिया है जिसमें किसी भी पॉइंट पे लैपलास ट्रांसफॉर्म इन्फिनिटी नहीं होता, और पोल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लैपलास ट्रांसफॉर्म इन्फिनिटी हो जाता है। सो आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कभी भी पोल लाई नहीं कर सकेंगे, यानी पोल और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है। सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई पोल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर लाई करता हो। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किसी पोल से स्टार्ट होगा और टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा अगर कोई और पोल रास्ते में ना हुआ। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोल होता तो फिर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे स्टॉप हो जाता। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक कनेक्टेड एरिया होता है, ये किसी पोल से स्टार्ट होगा और जो है वो इस तरह से मूव करता जाएगा, या तो इसको कोई पोल रास्ते में ब्लॉक कर सकता है अगर कोई और पोल आ जाता है, या फिर ये अप टिल एक्सटेंड होता रहेगा अप टिल प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। वो किस सूरत में प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और किस सूरत में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ पोल, और ये उस जिस जगह से स्टार्ट होता है उससे राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ मूव कर सकता है, और ये उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक कोई रास्ते में इसे पोल ब्लॉक ना कर ले। मसलन अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करते इसी 2 वाले पोल से और हम कहते ये लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करता है, तो ये लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करता करता जब ये -1 वाली पॉइंट पे आता तो यहाँ आके ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस स्टॉप हो जाता है क्योंकि अब रास्ते में एक और पोल आ गया। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किसी पोल से स्टार्ट होगा और किसी भी साइड पे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करेगा, लेकिन उसको रास्ते में कोई और पोल स्टॉप कर सकता है। अगर उसके रास्ते में कोई और पोल ना हुआ तो देन इट विल एक्सटेंड अप टिल प्लस इन्फिनिटी और अप टिल माइनस इन्फिनिटी। सो पोल कभी भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर लाई नहीं कर सकता, लेकिन जीरो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर लाई कर सकता है। क्योंकि जीरो की डेफिनेशन क्या है? जीरो की डेफिनेशन ये है कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे लैपलास ट्रांसफॉर्म जीरो हो जाता है। सो जीरो से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी अगर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि फिर हम ये कह रहे हैं कि वहां पे वो लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, विच इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ ROC या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ROC। जो ROC की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ROC कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिप्स पैरेलल टू j ओमेगा एक्सिस इन द S प्लेन। क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल ये एक पोल है जो आपको शो किया गया है किसी सिस्टम का, इसमें जीरो शो नहीं किया गया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जीरो जो है वो शो ना किया जाए इस S प्लेन में, तो वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा होगा, बट फॉरगेट अबाउट दैट, अबाउट द जीरो एट द मोमेंट। लेकिन ये एक पोल शो किया गया। अब इस पोल जिस जगह पे भी लाई करता है, जाहिर है इसका कुछ ना कुछ रियल पार्ट है। अगर ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब है इट ओनली हैज रियल पार्ट एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर ये इस प्लेन में लाई कर रहा है जैसे यहाँ पे शो किया गया है, तो इट हैज सम रियल पार्ट एंड इट हैज सम इमेजिनरी पार्ट। सो इस पोल से आप एक लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे पैरेलल टू j ओमेगा एक्सिस। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या इस पोल के इस साइड पे होगा, यानी आप इधर से शुरू होगा और प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, या इस पोल से इस साइड पे होगा और टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। सो किसी भी पोल से, जैसे कि मैं पहले भी आपको कहा, किसी भी पोल से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस स्टार्ट होता है एंड इट एक्सटेंड्स ऑन द राइट साइड अप टिल प्लस इन्फिनिटी, या ये भी हो सकता था कि इस पोल से स्टार्ट होके इधर से एक्सटेंड करता और टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करके टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता। लेकिन ये पोल वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये खुद रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर नहीं होगा। मसलन ये वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 2 + 1 j, इस पोल की लोकेशन है, तो इसका मतलब है कि ये 2 वाला पॉइंट जो है ये खुद रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर नहीं है। 2 से नेक्स्ट ये लाइन स्टार्ट हो रही है और फिर अप टिल इन्फिनिटी जो है ये वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इसका एक्सटेंड करता है।
ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। फॉर रैशनल लैपलास ट्रांसफॉर्म द आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल, ठीक है, और उसकी मैं आपको रीज़न भी बता चुका हूँ, उसकी जस्टिफिकेशन भी बता चुका हूँ। जस्टिफिकेशन ये है कि पोल एक ऐसा पॉइंट है जिस पे लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो इन्फिनाइट हो जाता है, और आरओसी एक ऐसा रीजन है जिसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। सो ये दो डेफिनेशंस, आरओसी की डेफिनेशन और पोल की डेफिनेशन, एक दूसरे के अपोजिट है। सो इस वजह से आरओसी के अंदर कभी पोल लाई नहीं करेगा। आरओसी हमेशा किसी पोल से स्टार्ट होगा और किसी पोल पे एंड हो जाएगा, या टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा या टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन आरओसी के अंदर पोल लाई नहीं कर सकता। मसलन अगर एक्स ऑफ एस एक हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म है 1/s-1, तो इसमें जो डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब है एट s इज इक्वल्स टू 1 वी हैव अ पोल ऑफ द सिस्टम। तो अब 1 पे इसका पोल है तो इसका आरओसी 1 से स्टार्ट होगा और टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, या 1 से स्टार्ट होगा और टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन 1 वाला पॉइंट जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर नहीं होगा। Okay, next property is if xt is of finite duration and is absolutely integrable, then the ROC is entire S plane. ठीक है, फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो है वो ये सिग्नल होता है, यानी फिनाइट ड्यूरेशन की टाइम डोमेन के अंदर डेफिनेशन ये है कि ये किसी फिनाइट नंबर से स्टार्ट हो और किसी फिनाइट नंबर पे एंड हो जाए। मसलन फ़र्ज़ करें ये -10 से स्टार्ट हुआ, ये t1 इज़ -10 एंड लेट्स सपोज t2 इज़ सम 30, तो ये -10 से 30 तक एग्जिस्ट करता है। सो इस वजह से इसको फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल कहा जाता है। सो फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जब भी आपके पास होगा तो उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो ये इंटायर एस प्लेन होगा, ये सारे का सारा एस प्लेन होगा। और बेसिकली इसकी वजह ये है कि फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल में आपके पास कोई पोल नहीं होता, इधर इस एस प्लेन में, फिनाइट एस प्लेन में कोई पोल नहीं होता। इसके जितने भी पोल्स होते हैं दे लाई एट इन्फिनिटी। ठीक है, किसी भी सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस हमेशा बराबर होते हैं, यहाँ पे खैर दोनों नहीं शो किए गए, लेकिन ये है कि नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस बराबर होते हैं। सो अगर लेट्स सपोज इसमें दो जीरोस थे, जो लेट्स सपोज एक कोई जीरो यहाँ पे है और एक कोई जीरो यहाँ पे है, तो जीरो जो है वो फिनाइट एस प्लेन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये फिनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है तो इसके सारे पोल्स इन्फिनिटी पे लाई कर रहे होंगे। सो इस वजह से इंटायर एस प्लेन जो होता है वो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का। और फिनाइट ड्यूरेशन की डेफिनेशन ये है कि इस सिग्नल को किसी फिनाइट नंबर से स्टार्ट होना चाहिए और किसी फिनाइट ही नंबर पे एंड हो जाना चाहिए। अब ये एक एग्जांपल है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि आपके पास x ऑफ t एक सिग्नल है e रेज टू पावर -t बिटवीन 0 एंड सम कैपिटल T एंड 0 अदरवाइज। अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये आता है 1/s प्लस a इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर -s प्लस a इंटू t। अब बज़ाहिर इसको देख के ये लगता है कि ये जो सिस्टम है इसका एक पोल है एट s इज इक्वल्स टू -a, ठीक है। हालांकि ये जो सिग्नल हमने लिया है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और किसी कैपिटल T पे एंड हो रहा है, एंड दिस कैपिटल T इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज लेस देन इन्फिनिटी। सो दिस इज बाय डेफिनेशन इज अ फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। तो फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का भी हमने बात की थी कि इसका तो कोई पोल नहीं होता फिनाइट एस प्लेन में, लेकिन यहाँ पे हमें इसको देख के ये लग रहा है कि एट s इज इक्वल्स टू -a इट हैज़ अ पोल। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप इसको s इज इक्वल्स टू a इसमें पुट करें, s इज इक्वल्स टू -a पुट करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, लेकिन ऊपर यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाएगा। 1 माइनस ई रेज टू पावर, जब आप s को -a पुट करेंगे तो ये भी e रेज टू पावर 0 बन जाएगा। e रेज टू पावर 0 इज 1, सो 1 माइनस 1 इज आल्सो 0। सो बेसिकली इट इज 0/0 फॉर्म, ठीक है। सो इस 0/0 फॉर्म को जो है वो एल पिटल रूल से आप सॉल्व करते होते हैं, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर को अलहदा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, नोमिनेटर को अलहदा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, और उसके बाद ये लिमिट पुट करेंगे s टेंड्स टू -a। सो जब आप ये करेंगे तो आपके पास x ऑफ -a की वैल्यू जो है ये कैपिटल T की इक्वल आएगी, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो विच शोज दैट दिस सिस्टम डज नॉट हैव एनी पोल इन
finite S plane. So that's why entire S plane will be its region of convergence. Now the next ROC property is if xt is right sided signal, ठीक है, and if the line real of s is equals to alpha naught is in ROC, then all values of s for which real of s greater than alpha naught will also be in ROC. इसको ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी मुश्किल अंदाज में लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, मैंने खैर वही लिखी पहले डेफिनेशन, लेकिन इसको भी मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राइट साइडेड सिग्नल क्या होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ राइट साइडेड सिग्नल। ये किसी फिनाइट नंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है अप टिल इंफिनिटी, यानी स्टार्ट किसी फिनाइट नंबर से होता है, लेकिन इस साइड पे राइट साइड पे टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी ये एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड अ राइट साइडेड सिग्नल, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन ये है, राइट साइडेड सिग्नल इज द वन विच इज जीरो प्रायर टू सम कैपिटल T1, यानी इसका ये वाला एंड माइनस इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए। ये वाला एंड तो है प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन ये वाला एंड जो है ये किसी फिनाइट नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। वो फिनाइट नंबर इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही जब तक इसका ये वाला एंड जो है ये फिनाइट नंबर है और दूसरा एंड जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे है, तो तब ये राइट साइडेड सिग्नल जो है वो कहलाएगा। तो राइट साइडेड सिग्नल के लिए बेसिकली आपके पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसका, या इसका जो ROC है, वो स्लाइड में शो किया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल इस राइट साइडेड सिग्नल के ये वाले दो पोल थे, एक पोल यहाँ पे था और एक पोल यहाँ पे था, तो हमेशा राइट साइडेड सिग्नल में किसी पोल से ROC स्टार्ट होगा और इस साइड पे टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा। सो ROC फॉर अ राइट साइडेड सीक्वेंस या सिग्नल इज फ्रॉम राइट मोस्ट पोल टू इंफिनिटी। अगर दो पोल थे तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें से राइट मोस्ट पोल कौन सा है। ये फॉर एग्जांपल -2 पे है, ये पोल जो है ये 1 पे है, तो राइट मोस्ट इनमें से कौन सा हुआ, ये वाला पोल। सो इस पोल से स्टार्ट होगा, इस पोल से नेक्स्ट स्टार्ट होगा और ये प्लस इंफिनिटी तक लाई करेगा। सो हमेशा राइट साइडेड सिग्नल जब भी आपके पास होगा तो उसके अंदर जितने भी पोल्स होंगे, मसलन मैं अगर आपको कहूँ कि एक आपके पास कोई एक्स ऑफ एस है जो कि राइट साइडेड सिग्नल को करेस्पॉन्ड कर रहा है, और उस एक्स ऑफ एस में फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि आपके पास 4 पोल हैं, एक -2 पे है, एक -1 पे है, एक 1 पे है, एक 2 पे है, और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका ROC क्या होगा। द आंसर है इसके ROC जो भी इसका राइट मोस्ट पोल है, जो कि इस केस में 2 वाला है, वहाँ से स्टार्ट होगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा। सो ये उस सिग्नल की प्रॉपर्टी है जिस सिग्नल की आप बात कर रहे हैं कि राइट साइडेड। अगर ये राइट साइडेड होगा तो हमेशा जो भी इसका राइट मोस्ट पोल है, अगर 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने मर्जी उसमें पोल हैं, तो आप देखेंगे सबसे राइट साइडेड पोल कौन सा है, और जो भी होगा उससे उसका ROC स्टार्ट होगा और ROC एग्जिस्ट करेगा अप टिल प्लस इन। इसी तरह से अगर xt लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, अब लेफ्ट साइडेड की डेफिनेशन ये है कि ये किसी फिनाइट नंबर से स्टार्ट हो और इसका ये वाला एंड माइनस इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करे। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लेफ्ट साइडेड सिग्नल। सो अगर xt कोई लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो उस केस में भी अगर फॉर एग्जांपल उसके 2 पोल्स हैं, तो इसका जो लेफ्ट मोस्ट पोल होगा वहां से ROC स्टार्ट होगा और ये एग्जिस्ट करेगा अप टिल माइनस इंफिनिटी। सही। सो अब अगर आप इस स्लाइड को और पिछली स्लाइड को देखें तो वही 2 पोल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक -2 पे है, एक जो है वो 1 पे है, लेकिन अगर सिग्नल लेफ्ट साइडेड है तो इसका ROC इस वाले लेफ्ट मोस्ट पोल से स्टार्ट होके माइनस इंफिनिटी तक है। और प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा था कि अगर यही पोल्स यही हैं, लेकिन अगर सिग्नल जो है वो राइट साइडेड है तो फिर वो यहाँ से स्टार्ट होगा और अप टिल प्लस इंफिनिटी होगा। सो ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिग्नल की टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ROC भी डिसाइड होता है। तो अगर आपको यही 2 पोल दिए जाएं और कहा जाए कि सिग्नल राइट साइडेड है, बताएं इसका ROC क्या होगा, तो उस केस में इसका ROC इस राइट मोस्ट पोल से स्टार्ट होके प्लस इंफिनिटी तक होगा। लेकिन अगर यही 2 पोल दिए जाएं और आपको ये कहा जाए कि सिग्नल इज लेफ्ट साइडेड, तो फिर जो इसका लेफ्ट मोस्ट पोल होगा जो ये वाला है, इससे स्टार्ट होगा ROC और ये माइनस इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा, माइनस इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगा।
नेक्स्ट टाइप इज इफ एक्स टी इज टू साइडेड सिग्नल। अब टू साइड लेफ्ट साइडेड भी हमने डिसाइड कर लिया, मतलब डिस्कस कर लिया, राइट साइडेड भी डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू साइडेड सिग्नल। टू साइडेड सिग्नल क्या होता है? टू साइडेड सिग्नल ये होता है कि जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करे, यानी ना किसी ये फिनाइट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ना किसी फिनाइट नंबर पे एंड हो रहा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द definition of a two-sided signal in the time domain। तो इसका हमेशा आपके पास ROC जो होगा वो पोल्स के दरमियान में होगा, यानी ये इस वाले पोल से फर्ज करें स्टार्ट हुआ और इस वाले पोल पे आके एंड हो जाएगा। ये ना आप टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, ना टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है। इस वाले पोल से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट साइड पे इसने मूव किया, रास्ते में ये वाला पोल आ गया, तो यहाँ पे आके ये ROC खत्म हो गया। सो जब भी आपके पास सिग्नल जो है वो टू साइडेड होगा तो हमेशा उसका जो ROC होगा दैट वुड बी बिटवीन टू पोल्स। इट वुड बी बाउंडेड बाय पोल्स, नाइदर इट विल एग्जिस्ट फ्रॉम पोल टू प्लस इन्फिनिटी nor it will exist from some pole to minus infinity, बल्कि ये हमेशा दो पोल्स के दरमियान में होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला शो किया गया। सो ये कुछ सिग्नल की टाइप्स और उनसे एसोसिएटेड ROC हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। सो एक चीज़ तो ये थोड़ा सा अगर मैं इसको समराइज करूं तो ROC एक ऐसा एरिया है जहां पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कन्वर्ज करता है, जहां पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो जनरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये नहीं है कि हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा, किसी रीजन में एग्जिस्ट करेगा, किसी रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो वो रीजन जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है वो उसका ROC कहलाता है या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। अब ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है, इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी वो ये कि ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये जो j ओमेगा एक्सिस है आपके पास, इसके पैरेलल स्ट्रिप की फॉर्म में होगा, यानी जहाँ पे भी कोई पोल है वहाँ से आप एक लाइन ड्रा करें, उस पोल से अब स्टार्ट होके इधर भी हो सकता है, इससे इधर भी हो सकता है। सो इट इज़ पैरेलल टू j ओमेगा एक्सिस। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैन नॉट कंटेन एनी पोल्स, और वो भी आपको जस्टिफिकेशन भी दी कि पोल और ROC की डेफिनेशंस जो हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं, इस वजह से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर पोल नहीं हो सकता। फिर हमने ये डिस्कस किया कि अगर सिग्नल की टाइप राइट साइडेड है तो उसका ROC कैसा होगा, वो किसी आउटर मोस्ट पोल से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होगा। अगर सिग्नल लेफ्ट साइडेड है तो उसका ROC किसी लेफ्ट मोस्ट पोल से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी तक होगा, और अगर सिग्नल टू साइडेड है तो उसका ROC हमेशा बिटवीन टू पोल्स होगा। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ROC की जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू मेंशन द ROC along with the algebraic expression to completely describe द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से आप नहीं बता सकते। लास्ट टाइम हमने दो एग्जांपल की थी, उन दोनों केस में आपके पास जो एक्स ऑफ एस आ रहा था वो सेम आ रहा था, लेकिन वो ऑल दो डिफरेंट सिग्नल थे। तो जब तक आप इसके साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज़ जो है वो आपके पास कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब नहीं करेगी। सो होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंशाल्लाह हम ROC की और कुछ मज़ीद जो इसकी काजैलिटी स्टेबिलिटी सिस्टम की के साथ लिंक्ड हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।